So this is angular projection. Article name is angular projection, and I have framed a question. A projectile is fired with velocity small u, making an angle theta with horizontal so that its trajectory is parabola. Also obtain expression for time of flight, horizontal range, maximum height. Let us suppose that I have a projectile, I have an object thrown from point O with initial velocity small u, making an angle theta with the horizontal. This is x-axis, this is horizontal, this is vertical axis, y-axis. After some time, the projectile reaches at point P, and at point P, the distance covered by the object along x-axis is small x. The coordinate of P is x, and the distance covered along y-axis is small y. प्रोजेक्टाइल P पॉइंट पे पहुंच गया, along x-axis ने x डिस्टेंस कवर किया, और y-axis हाइट कितनी ली ऊपर को, that is equal to small y. अब हमने u, this is u, इनिशियल वेलोसिटी u से इसको जो है लॉन्च किया. दिस इज यूनिफॉर्म, ये अजम्पशन है, कल भी हमने ली थी. यूनिफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. u को हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया. दिस इज x कंपोनेंट, दिस इज ux इज इक्वल टू अलोंग थीटा साइड x कंपोनेंट लेते हैं. ux इज इक्वल टू u कोसाइन थीटा along uy side is equal to u sin theta. And at time t, the projectile reaches at point B and its velocity changes. Initial velocity, the launching velocity is small u, but after some time its velocity changes. Its velocity is v. Let us suppose that making an angle beta with the horizontal, vx is the horizontal component of the velocity. ये इसको x axis की तरफ ले जाएगा, ये वाला component इसको इधर ले जाएगा, और vy वाला component इसको ऊपर उठाएगा. तो after some time the projectile reaches at point A. This is the highest point of the journey. अब ऊपर तो ये जाएगा नहीं, कम तो vy ये जो component है, vy component of the velocity becomes equal to 0. This is the highest point, और मैंने लिखा हुआ है h maximum. This is the maximum height attained by the projectile, and it moves down and touches the ground at point B, right. अब O is the point from where we have launched the projectile, and B is the point when the projectile touches the ground, and the displacement between the point of projection to the point of landing is denoted by R. R से इसको डिनोट किया गया, कैपिटल R से, और इसको रेंज बोला गया, रेंज. तो हमारा यही क्वेश्चन है. पहले हमने ये बताना है कि प्रूव दैट द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर. पैराबोलिक का मतलब ये है x और y में क्या रिलेशन आएगा. x इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस. कल हमने इनिशियल, इससे पहले जो आर्टिकल किया उसमें फाइंड आउट किया था x y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर. द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर. नाउ वी शैल प्रूव हाउ द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर. We will prove it. So to do this, motion along x-axis, motion along x-axis, I will use the equation s is equal to ut plus half at square. Make this equation along x-axis. This is the displacement along x-axis. This is the velocity along x-axis. This is the acceleration along x-axis. Sx, displacement along x-axis at point P. At point P, there is a small x. Ux,
the component of the initial velocity along x-axis ux is equal to u cosine theta, horizontal component of velocity, and ax acceleration along x-axis, acceleration is equal to dux velocity along x-axis divided by time, right? So along x-axis we have thrown the projectile with uniform velocity. This is a uniform, so acceleration is equal to 0. This is uniform. So put these values. Sx is equal to x is equal to ux is equal to u cosine theta. Small t plus 0. Small t is equal to x divided by u cosine theta. Equation number 1. I will use this equation. Now motion along y-axis. Motion along y-axis. Use the same equation as y s is equal to ut. Make this equation along axis ut plus half at square ay is the ground. Suppose if an object moves from ground to in the upward direction, then its velocity decreases. A is equal to minus g. velocity इसका कम होता है जब ऊपर जाएगा. पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं. जब ये डाउन जाएगा इसका वेलोसिटी जब डिक्रीज करता है, फॉल करता है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव. और यहाँ पे वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा. a इज इक्वल टू प्लस जी. ऊपर को हम g माइनस लेंगे, नीचे को हम g प्लस लेंगे, तो यहाँ पे a y इज इक्वल टू माइनस जी. एस वाई द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अलॉन्ग y एक्सिस y. ये देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया, P पॉइंट पे पहुंचा, तो ऊपर को इसने कितना हाइट लिया, y. और uy इज इक्वल टू u साइन थीटा. ये जो इक्वेशन बना, ये बना मेरे पास y इज इक्वल टू u, y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू स्मॉल t प्लस 1/2 ए वाई की जगह माइनस जी और टी स्क्वेयर. तो y बन गया मेरे पास y इज इक्वल टू यू साइन थीटा. t की वैल्यू पुट करूंगा मैं यहां से यहां पे t की वैल्यू पुट करूंगा. t इज इक्वल टू x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा. अब यहां पहुंच गए, ये माइनस आ गया माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर. तो इस सारे का स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा. नाउ इक्वेशन u से ये u कट गया, y इज इक्वल टू x साइन थीटा बाई कोसाइन थीटा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा माइनस स्मॉल g डिवाइड बाई 2 u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर.
थीटा कांस्टेंट था जिस एंगल से हमने लॉन्च किया, तो tan थीटा कांस्टेंट, स्मॉल g कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, u स्क्वायर कांस्टेंट, cos स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, y इज इक्वल टू tan थीटा को मैं p मान लेता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू p कांस्टेंट है px माइनस g डिवाइड बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को q कंसीडर कर लेते हैं कांस्टेंट x स्क्वायर. This is a quadratic equation in mathematics. Quadratic equation. This is the equation of parabola. This is quadratic equation or equation of parabola. Hence, path followed by the projectile is parabolic in nature. Hence, path followed by projectile. Hence, path followed by projectile is parabolic in nature. Projectile is parabolic in nature. ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, सो दैट इट्स ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक इन नेचर. नेक्स्ट वन इज also obtain expression for time of flight. Okay, time of flight, the time during which the projectile remains in air. जितनी देर प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट एयर में रहेगा उस टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट एक्सप्रेशन इसके लिए निकालना है. आई विल यूज द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. Make this equation along y-axis, y-axis, y-axis. Projectile sy, what is sy? ऑब्जेक्ट का अप जाना फिर इसका डाउन आ जाना. ये ओरिजिन है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है. sy डिस्प्लेसमेंट आएगा 0. द डिस्प्लेसमेंट sy 0. इसका ऊपर जाना, यहां तक जाना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को y हो गया, फिर वापिस यहां से नीचे ही आ जाना, then the displacement is 0. sy is 0 and uy is equal to u sin theta and ay is equal to, what is ay? What should I write here? Ay, somebody tell me. So minus g. Minus g, good. Small t is the time of flight. यहां से यहां तक का टाइम, आने और जाने का टाइम पूरा कैपिटल टी. अगर ये यहां से हाफ जर्नी का टाइम होता है टाइम ऑफ एसेंट. अगर एक साइड ही जाना हो टाइम ऑफ एसेंट, यहां तक हुआ t/2 और यहां से नीचे तक जाने का टाइम हुआ टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट. ये भी t/2 हो गया. t/2 plus t/2 is equal to t. Put all these value. 0 is equal to uy is equal to u sin theta into t. ay जो है माइनस आ जाएगा तो माइनस ले लूंगा मैं यहाँ पे 1/2g t square. Rearrange this equation. 1/2g t square is equal to u sin theta into t. t से t कट जाएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास बचेगा t is equal to, ये 2 इधर, 2u sin theta by g. This is the final expression for time of flight.
is the final expression for time of flight. On what factors time of flight depends? कितनी देर वो एयर में रहेगा, ये डिपेंड करेगा t is directly proportional to initial velocity. आपने इसको initial velocity कितना दिया है. It also depends sin of the angle theta. It also depends inversely proportional to g. Next one is horizontal range. Horizontal range, the displacement from the point of the projection to the point of the landing is known as horizontal range. O point से लेके A point के बीच का direct displacement जो है horizontal range माना जाएगा, और horizontal range के वो R से denote करेंगे. तो इसको solve करने के लिए I will use the equation S is equal to ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और रेंज सारी की सारी रेंज along x एक्सिस साइड ही है, तो हम इस इक्वेशन को बना लेंगे along x साइड, x x x. तो along x axis sx is equal to range. डिस्प्लेसमेंट along x axis कितनी कवर कर ली प्रोजेक्ट में? रेंज. कैसे? O पॉइंट से B पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? रेंज हुआ, R हुआ. एंड ux इज इक्वल टू u कोसाइन थीटा. ax ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड 0. सो sx की जगह मैं r पुट कर दूंगा. r इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू u cosine theta. Small t is equal to time of flight from the point of projection to the point of the landing. That is equal to time of flight. It is equal to u cos theta. Put the value of time of flight. Time of flight is equal to 2 u sin theta by g. So range is equal to u into u square two sin theta into cosine theta divided by g is equal to u square. 2 sin theta into cosine theta, its formula is sin 2 theta divided by g. This is the final expression for the range. Now the very important one is maximum range. ये जो डिस्टेंस है O से लेके B तक के बीच का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? इट डिपेंड्स ऑन द एंगल थीटा. ये एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा. हाउ? लेट अस सी. हमारे पास एक्सप्रेशन आया रेंज के लिए. हमने देखा रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर. कांस्टेंट. रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी. कांस्टेंट. तो रेंज अब डिपेंड कर रहा है, रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 2 थीटा. sin 2 थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 2 थीटा. तो रेंज मैक्सिमम होगा. R इज मैक्सिमम. वेरी इंपॉर्टेंट. R इज मैक्सिमम इफ sin 2 थीटा इज मैक्सिमम, और साइन थीटा की वैल्यू जो है 0 डिग्री से लेके अगर हम 90 डिग्री तक चेक करें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है. तो साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ 2 थीटा है, साइन थीटा इज मैक्सिमम. तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगी 1. और 1 कब होगी? अगर साइन थीटा 1 है, देन 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सिंपल. और थीटा यहां से आ जाएगा 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, इट इज इक्वल टू 45 डिग्री. अगर आप 45 डिग्री से इसको लॉन्च करते हो, द रेंज विल बी मैक्सिमम. और रेंज मैक्सिमम के लिए जो एक्सप्रेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट. इफ यू विल लॉन्च द प्रोजेक्टाइल विद एन एंगल 40 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन द रेंज विल मैक्सिमम.
and expression, final expression for maximum range is equal to, it is equal to, रेंज कितना था मेरे पास, ये था मेरे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो रेंज मैक्सिमम के लिए एक्सप्रेशन बन जाएगा u स्क्वायर साइन थीटा, रेंज जब मैक्सिमम है तो साइन थीटा की वैल्यू इसकी 1 ले ली मैंने, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, that is equal to 1 divided by g. This is the final expression for the maximum range. This is the maximum range. ये range जो है maximum. Now we will prove that what is the max. We will derive expression. What is the expression for maximum height? Maximum height. तो हमने देखा ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट ए था, ए पे मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 इज द हाईएस्ट पॉइंट. अब यहां से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, सो वी वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू 0. तो मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन भी मुझे कैलकुलेट करना है. इसके लिए डेफिनेशन लिखा है, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अबव द ग्राउंड व्हेन इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, वी वाई इज इक्वल टू 0. I will use equation v square minus u square is equal to 2as. This is the journey maximum height along up and down. Make this equation along y-axis. vy तो 0 है. What is uy? u sin theta. What is ay? Minus g. What is sy here? Displacement up in along the vertical direction, that is h maximum. Use all these, 0 का square minus uy, u square sin square theta is equal to 2, ay की जगह माइनस जी, इसकी जगह h मैक्सिमम. अब ये मेरे पास बचा यहाँ पे माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा और h मैक्सिमम के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया. मैक्सिमम हाइट के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा by 2g. This is the max. This is the final expression for the maximum height. Height depend करेगी u square sin square theta divided by 2g. This is the expression for the maximum height. Next one is, I have a question. Prove that the maximum horizontal range is 4 times the maximum height. This is a question. 2 marks question. Prove that the maximum horizontal range is 4 times the maximum height. तो दोनों के लिए maximum horizontal range is 4 times. तो हमने क्या करना है, maximum horizontal range. पहले तो रेंज के लिए एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, अभी निकाला मैंने रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए मैंने एक्सप्रेशन निकाला यू स्क्वायर बाई जी, और एंगल उस टाइम निकाला थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. मोर ओवर रेंज का जो एक्सप्रेशन था वो कितना था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज का एक्सप्रेशन था. ये मैक्सिमम रेंज का है थीटा 40. और मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन मैंने कैलकुलेट किया, एच मैक्सिमम is equal to h maximum. What is h maximum? Who will tell me? h maximum का वैल्यू बताइए. u square sin square theta upon 2g. u square sin square theta upon 2g. क्वेश्चन रीड करिए. प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट. हॉरिजॉन्टल रेंज जो है मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स है. कैसे प्रूव करोगे इसको?
सिंपल, H maximum is equal to U square sin square theta, sin थीटा का स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा मैक्सिमम होगा जब हॉरिजॉन्टल रेंज, तो थीटा 45 डिग्री है, 45 डिग्री का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45? 1/√2. गुड, 1/√2. So H maximum is equal to U square divided by 2g और sin 45 1/√2 का स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर में 2 चला जाएगा, U square by 2 into 2 4g 4g 4 ले जाए इधर, 4 into H maximum is equal to U square by g. What is U square by g? देखो, U square by g is equal to range maximum. Hence proved. Range maximum is equal to 4 times the maximum height attained by the projectile. I have another question for you. You have to prove that range maximum is equal to R square by 8h plus 2h. Is the question. R इसमें प्रोजेक्टाइल का केस है. Let us suppose that R is the range, not maximum range. Range maximum के साथ R लगा हुआ है. Theta is the angle of projection, right? If R is the horizontal range, theta is the angle, and H is the maximum height. इसमें small h जो दिया है, maximum height. Small h is maximum height. तो आपको प्रूव करना है कि रेंज इसके बराबर है. आपको ये प्रूव करना है R स्क्वायर डिवाइड बाई 8h प्लस 2h इज इक्वल टू. तो इसमें सिंपल है, हमें R के बारे में पता है. R का व्हाट इज R? I know that R is equal to U square sin 2 theta divided by G. I know that H maximum height is equal to U square sin square theta divided by 2G. This is 2G. अब हम राइट हैंड साइड प्रूव लेंगे. राइट हैंड साइड है मेरे पास R स्क्वायर डिवाइड बाई 8h प्लस 2h, और इसको प्रूव कर देंगे. R स्क्वायर की वैल्यू, R की वैल्यू ये पुट करेंगे यहाँ पे U स्क्वायर
साइन 2 थीटा, नॉट साइन स्क्वायर, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, इस सारे का स्क्वायर डिवाइड बाई 8h, h का वैल्यू है यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g प्लस 2 into h is u square sin square theta divided by 2g. Now solve this. It is equal to u square, u का पावर 4 बन जाएगा, स्क्वायर है, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा, तो इसका स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये डिवाइड में चला जाएगा जी स्क्वायर, 8 एज इट इज, यू स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, 2 और जी एज इट इज, प्लस 2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। कुछ कट रहा है यहाँ पे, बताइए। एक जी से एक जी कट जाएगा, एक जी रहेगा यहाँ पे, ये जी गया, 2 4 are 8, यहाँ जी बचा सिर्फ, यहाँ 4 बचा, 4 से ये 4 कट गया, एक यू स्क्वायर से एक यू स्क्वायर भी कट जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। मेरे पास बचा गया यहाँ पे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी प्लस 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 भी कट गया, ये नहीं होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। कुछ कॉमन आ रहा है मेरे पास, यू स्क्वायर बाई जी, ब्रैकेट में बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 बन जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू रेंज मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना है। सो ये सारे के तीनों, राइट 2 और 3 टाइम्स द सेम आर्टिकल एंड कीप इन माइंड ऑलवेज, ये दिमाग में रखना है अपने, आर मैक्सिमम क्या है, आर कितना है, आर का एक्सप्रेशन क्या है, एच क्या है, और आर मैक्सिमम क्या है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं न्यूमेरिकल इजी हो जाएंगे। आर मैक्सिमम कितना है आपके पास, ये आपने 3 बार बता दिया मैंने, यू स्क्वायर बाई जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट भी कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, 2u साइन थीटा बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन है, तो ये दिमाग में रखें, कल हम